श्री अकाल। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ है बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत एक ऐसी कुड़ी जिनकी स्माइल पर हम सब फिदा हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अंकिता लोखंडे के उनका वो देख लिया अभी आप। वेलकम अंकिता। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पंजाब केसरी रॉक्स। मैंने बहुत बहुत बार इंटरव्यू किया है पंजाब केसरी के साथ एंड इट्स कंप्लीटली माय प्लेजर टू बी हियर। जब मैंने लास्ट कॉफी का ट्रेलर देखा था पहले, तो मुझे लगा था यार 14 फेब को क्यों आ रही है, 14 फेब को तो वैसे भी मतलब कॉफी डेट पे जाना चाहिए, दिल जुड़ने चाहिए, ये क्यों रहा है? व्हाई लास्ट कॉफी ऑन वैलेंटाइन? I think it's a love story, you know. मतलब I always feel Valentine Day is all about love, but love comes with a lot of pain also sometimes. Love comes with joy also sometimes, but love has their own phases. So this was one of the phase, and that's why we thought it's a best time to launch this film and um, उसमें जुदाई भी है लेकिन प्यार भी है. So yeah, that's interesting. वो सारे इमोशंस हमको नजर आ रहे थे जब हमने देखा था इसको। बहुत अनकन्वेंशनल सी पेयरिंग भी मुझे लगी। कैसा होता है जब डायरेक्टर ही एक्टर भी होते हैं साथ में? Yes, I think it's different. मैंने कभी इसे काम नहीं किया था, but I always believe the vision of Shoaib because he's really good with. I have seen his performances and उसकी जो पहले pictures, movies आई हैं मैंने देखा है उनका का और I always feel that हम किसी के साथ भी काम करें, हाँ dedication matters. Like हाँ how dedicated you're towards your work, and I always want to work with such people who are so deeply into cinemas, who so want to prove themselves, who so want to do it on their own basis, because it's not easy to to survive in this world, in this industry especially. You have to आपको अपना खुद कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि आप stand out हो, and that's what Shoaib is doing. I think he's doing absolutely good for himself, for the production house. I think that's something very amazing. And my thing was like why I wanted to work with Shoaib also. It's an independent cinema. आज हमारे यहाँ independent cinema को इतनी value नहीं मिलती है जितनी की मिलनी चाहिए. And as an actor, if I can do something for cinema where I can take this to another level, why not? If I can do that, and I really like the script. I really like the production house. I like the people. I always look for good people to work with. I always try and make sure that I'm working with nice people, because that's where I survive. That's how I survive. I need people around. I need good people around. अगर अच्छे लोग होंगे तो आप अपने आप अच्छा काम करके निकल जाओगे. And it's important कि मैं वैसे लोगों के साथ काम करूँ. And I really love Shoaib. Like the way he works. I mean, he's a writer also. He's a director also. He's an actor also. And he's a producer also. So it's amazing. Yeah. I mean, I would want to become something like this one day. So yeah, but it's awesome to work with him. And more than that, my thought process was, this film is actually, it's for my very dear friend Sakshi. She is the producer. She's also a part of it, and she has produced this film. So it was her project where she approached me. I'm a very old friend, very very old friend. जब मेरे पास काम नहीं था, वो मुझे काम देती थी. That was like that. I used to do catalog shoots with her. तो तब वो मेरे साथ खड़ी थी, and that this was my completely मेरा फर्ज था कि मैं उसके इस फिल्म का साथ दूं. And I wanted this to happen, and I'm glad that I did this film. I met Shoaib, I met so many people, and we did a good job, I think. मुझे एक बात बताओ यार, ये लास्ट कॉफी से ना, एक तो कॉफी मेरी फेवरेट है, ठीक है, मैं लास्ट कॉफी कभी पी सकती. ठीक है, मुझे ये बताओ, आपको चाय पसंद है कि कॉफी? और विक्की से आपकी पहले मुलाकात चाय पे हुई थी, कॉफी पे हुई थी? मुझे सबसे पहली बात तो ना चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है, दोनों पसंद नहीं है. Don't So tell me. I'm not, no, I'm not like that. मुझे पानी अच्छा लगता है, but I'm not a coffee और चाय person. ऐसा होता है ना, लोग addictive होते हैं उस चीज को लेकर, but I'm not like that. I can survive without chai and coffee both. That's ऐसा amazing. कुछ हो. एंड उसके अलावा विक्की से मैं ना कभी चाय पे मिली ना कॉफी पे मिली. हम पार्टीज में मिले, कुछ अलग ही पीते हुए मिले. सो वो थोड़ा अलग था. सो ना चाय ना कॉफी, बट या लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. वो तो मुझे लगता है इस पे कह भी नहीं सकते ना, है ना? वेरी नाइस. अच्छा, वैसे अगर मैं बात करती हूँ इसकी स्टोरी लाइन की, जो बहुत अमेजिंग मुझे लगा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगी, बट देन आज के वक्त में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं. जहां प्यार होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
आई थिंक होती है, हर रिलेशनशिप में होती है. इट्स नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. मेरी मम्मी की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो इट्स एवरीवेयर. इट्स नॉट जस्ट उस एक पर्टिकुलर, हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं शायद कि हाँ हम बाकी, मतलब मम्मी से भी जब मेरा झगड़ा होता है तो मुझे इट्स लाइक क्यों हो रहा है. आई एम लाइक दैट. आई थिंक अ लॉट अबाउट माई रिलेशनशिप. अगर मेरे हाँ किसी से कुछ हो जाए तो फॉर मी इट्स नॉट जस्ट माई हस्बैंड, माई लाइक माई रिलेशनशिप. इट्स my relation with my friends, my relationship with my इन सब में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, सब में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. The only key to resolve all these things is a communication. That's what I believe. So you need to have a good communication between any conflict, any confusion. If people are judging you, you have your mouth to speak. You need to tell people what you feel. आप जितना अपने आप को कंप्रेस करते हो वो फटता है और फिर वो अलग चीज में निकलता है. It's always better to have a good communication. And you, for communication also, you need to be a good listener. Absolutely. It's very important. You can't just be a communicator that you're just communicating, but the other one, and you're not ready to listen. Then it's not a communication. It's just that you want to say it and you're done with saying. But you need to listen. You need to hear out what other person is trying to tell you. That's very important. बट मुझे लगता है आजकल जब लड़का लड़की काफी मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक ईगो फैक्टर भी होता है. दोनों के अंदर एक ईगो जो होती है वो कम्युनिकेट करने हाँ के लिए हाँ बिल्कुल होती है. सब में हाँ होती है. हम में भी है बड़ी. हम में भी हम बहुत, हम ऐसे दो ना अपना अपना यार राइट. बट एवरीथिंग देयर इज लव फॉर ईच अदर. यस बट हम उतना ईगो को बड़ा नहीं कर लेना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे. इट्स गुड टू हैव इन अ फनियर वे, टू इन अ क्यूटर वे, बट not on that verge where you can lose your partner, not on that. So you have to draw certain lines, certain boundaries, that you don't hurt each other that way कि आपको वापस जाना ही मुश्किल हो जाए. सब में होता है यार, किसमें ईगो नहीं होता. और आजकल तो हम ऐसे सब अपना कंपैरिजन सभी करते हैं, राइट. बट आफ्टर एवरीथिंग इट्स ऑल योर फ्रेंडशिप, इट्स योर बॉन्ड, व्हाट यू शेयर्ड. एंड at times one partner needs to little mellow down to understand other. आप हर दोनों एक पेस पर रहकर तो एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाओगे. So हमारे यहाँ रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा होता है कि कभी जब विक्की ऊपर होता है तो I listen to him, और जब कभी मैं ऐसे तो he calms me down and he understands the situation. So it's very important. And it's not, I'm just saying it right now, and it's not that easy also, because जरूरी हर बार वो इंसान समझे, बट ये नेचुरल है. बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, झगड़ते हैं हम, बट देन आफ्टर एवरीथिंग टुगेदर वी लव ईच अदर. हर किसी में फाइट्स है. मैंने अपने मम्मी पापा की फाइट्स देखी है, तो क्या हो गया, बट स्टिल लव ईच अदर. सो इट्स ओके. तो ये नजर उतार लेती हूँ पहले मैं, है ना, ऐसा करके ये प्यार ऐसे उतार ही लेना. विकी को अच्छी बीवी मिल गई है जो उतार ही लो. बिल्कुल सही बोला. अंकिता जैसी प्यारी बीवी, मुझे लगता है इतनी प्यारी स्माइल इतनी मिली है, उनको तो बिल्कुल वारी जाना चाहिए आपके. अच्छा, एक चीज हस्बैंड्स के बारे में वही अक्सर तो. कि जिनको सुंदर बीवियां मिलती है ना, उन पतियों को गुड लिसनर होना ही चाहिए, उनकी सिर्फ बात सुननी चाहिए, शादी अच्छे से चलती है. ये आप भी मानती हो? पता नहीं है, विक्की से पूछना पड़ेगा. वो तो यही बोलता है कि बस ऐसा कुछ, सिर्फ वो बोलता है, ऐसा है नहीं. इसे बोलने वाली बातें हैं कि मैं सुनता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमारे घर में. आई थिंक मैं बहुत सुनती हूँ उसकी. मुझे ऐसा लगता है कि तू बड़ा है ना मुझसे, चल तू मेरा टीचर बन जा. ही लाइक्स टू टीच मी, ही लाइक्स दैट थिंग कि बेबी मैं बोल रहा हूँ ना ये सही है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होता है. सो अब मैंने गिव अप कर दिया. मतलब तू सही मैं गलत, so it's okay. हमारे उल्टा है ये फैक्टर. बट he gets that balance into me. उसको ज्यादा समझ है चीजों की. मैं हर चीज को दिल से सोचती हूँ, वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता है. So that's the difference between both of us. तो वो मुझे वो गाइड करता है कि कहाँ दिमाग चलाकर वो चीजें मेरे लिए खड़ी करता है. या बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है पार्टनर्स के बीच में, और वो एज डिफरेंस जो थोड़ा सा होता है ना, वो भी काफी काम आता है. हमें लगता है कि बट हमारा कुछ ज्यादा है. हमारा 21 साल का डिफरेंस है, तो मैं उसको बार बार बोलती रहती. मैं उसको चिढ़ाती हूँ. मैं चल तू मुझसे बड़ा है ना, वो 1 ही साल का डिफरेंस है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है हम दोनों में. और समटाइम्स यू लाइक दैट, लाइक अब आई एज अ वुमन आई फील चल तू रख, तू समझा, मुझे आता सब है, बट आई गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी वेयर
you can teach me. I give you that thing, you know. And it's cute. It's in a way, you know, you're giving him that right picture. मैं बड़ा मैं समझाता हूँ कि मैंने हाँ, समझ ऐसे तो मैंने तो पूरी जिंदगी काट ली इसके बिना, तो आप क्या मुझे समझाएगा ये? But yes. एक रिक्वेस्ट है अंकिता, ये इंटरव्यू प्लीज आप विक्की को जरूर दिखाना, है ना? इसने मेरी ये सारी बातें सुन रखी है, सब कुछ सुन रखा है, तो इट्स ओके। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब मैंने देखी ना ये द लास्ट कॉफी, तो मुझे आपकी लुक बहुत डिफरेंट लगी। एक तो आप एक मुस्लिम किरदार कर रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, है ना? और उसमें थैंक लाइक इनोसेंसी है, एक एक क्वाइट, मुझे सीरीन सी बिल्कुल मुझे अंकिता नजर आई, जो बिल्कुल ऑपोजिट लगती है वैसे, है ना? यू। यस। बहुत तो बोल। मैंने उस फिल्म में भी, इफ यू सीन द फिल्म, मैंने दो किरदार निभाए। एक जो शादी के बाद का है, एक शादी के पहले का है। सो जो शादी के पहले का पार्ट है वो मैं हूँ, वो हाँ हाँ एकदम मैं हूँ, यू नो। हाँ। एंड जो शादी की पार्ट जो प्रेजेंट वाला चल रहा है वो अलग लड़की है। सो यू नो दैट्स नॉट मी। बट ऑफ कोर्स मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर करूँ उसमें अपना कुछ थोड़ा, यू नो, आई शुड ऐड माई सेल्फ सो दैट इट कम्स नेचुरली। तो ये जब भी अंकिता। आप अगर, हाँ, तो मैंने आप जितने भी सीन्स देखोगे जो मेरी शादी के पहले वाले हैं, you know, you will हाँ see me only like the way I'm talking right now, you will see कि मैं ऐसी ही थी उस कैरेक्टर में। डिफरेंस कहाँ आता है, जहाँ पर यू नो आफ्टर लाइक जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें जब मैं सोचती हूँ तो वो डिफरेंट है। बट यस, दैट्स, I always feel that you should add your little mirchi in every character, so yeah, I do that. अच्छा, वैसे एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा अच्छे लगते हैं प्ले करने, जो आपके जैसे होते हैं या फिर जो थोड़े अलग होते हैं या बहुत चैलेंजिंग यार होते मुझे है ना, मैं अब तक अपने अपने से अलग ही कैरेक्टर करती आई हैं? हूँ, हाँ मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। जिसमें अर्चना किया, जिसने बागी में किया, जिसमें यू नो मणिकर्णिका वाज स्टिल लाइक मी, लाइक यू नो वैसे। तो आई वांटेड टू प्ले समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली लाइक मी। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने जैसी कुछ करूँ। तो मुझे जब ये मौका मिला तो मैंने इसे खोया नहीं, मैंने तुरंत बोला अब तो मैं करके दिखाऊंगी मैं जैसी हूँ। मैंने, मुझे ट्रस्ट मी, मतलब यू नो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट मेरी एक्टिंग इतनी एफर्टलेस हो कि लोगों को क्योंकि जब आप डायलॉग नहीं बोलते हो ना तो ऑडियंस कनेक्ट होती है। सो व्हेनेवर यू विल सी माय सीन यू विल कनेक्ट टू द सीन्स, यू नो, बिकॉज आई ट्राई as much as I can to keep it very natural and very convincing language so that people understand. Even Iram, you know, उसकी उर्दू कहीं कहीं है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन यू नो मैंने उसको अपने तरीके से ऐसे बोल किया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। और जब मैं वो बोलूं तो डायलॉग ना लगे, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं, अगर मैं आपको बोलूंगी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा डायलॉग पहुंच ही नहीं पाएगा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, you know, है ना? that's how it should be. That's how it should be. You know, I हाँ। try to make sure that I whatever I play, it should get connected directly to the audience. That's what my thing is. बट एक चीज मुझे हमेशा लगती है एज एन एक्टर, है ना, ये जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि अपने टोन में बात करना या अपने से कनेक्ट करके करना, बट आप नेचुरली तो कर लेते हो, जब स्क्रीन पे करना होता है तो इट्स डिफरेंट। उसमें बहुत एफर्ट्स लगता होगा नहीं, इसको एफर्टलेस बनाने में किरदार को? I don't know यार, पता टेलीविजन इतना सिखा देता है ना आपको कि अब कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मतलब अगर मैं डायरेक्टली शायद फिल्म में आ जाती तो मुझे शायद कुछ नहीं आता होता, ट्रस्ट मी। क्योंकि यहाँ सिखाया नहीं जाता, यू नो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है बट अलग लेवल। यहाँ मैंने टेलीविजन में सारी चीजें प्रैक्टिकली कर करके सीखी है, हाँ डे टू डे बेसिस पे, यू नो, आई हैव लर्नड each and every day from the sets of Pavitra Rishta, from so many people, you know. So I feel टेलीविजन ने इतना घसा है ना कि आपको सारी चीजें एक्टिंग के नाम पे, अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर उठा के दे दोगे ना, आई कैन परफॉर्म ना। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि टेलीविजन आपको सिखाता है, आपको आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसको आपके पास टाइम ज्यादा होता नहीं है रिहर्सल्स का, या आपके प्रिपेयर, आप धीरे धीरे वो डे टू डे पे ग्रो करते हो ना एज एन एक्टर। बट इट्स सो मच टू लर्न एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अ big part of this television industry, because I owe everything to this television industry. I love my television industry. I love Balaji. I love Ekta ma'am, and I'm so grateful that, you know, I could be a part of such big show which is called Pavitra Rishta, and still people are in love with me, and still the way they bless me with their, you know, joy, happiness, and you know, positivity. I'm grateful for that. एब्सोल्युटली। और फिर जब अपने कैरेक्टर नेम की मतलब की तरह आपको बुलाया जाता है, अर्चना कह के जब लोग बुलाते होंगे तो Exactly. होगा ना तभी? आई थिंक वो सबसे बड़ी, वो अभी तक लोग मुझे अर्चना के नाम से जानते, कितने लोग, एंड आई लव इट। आई फील आई एम सो कनेक्टेड टू अर्चना माई सेल्फ, यू नो। मैं इतनी ज्यादा जुड़ी हूँ अर्चना से कि इट्स वो मेरे अंदर है,
तो वो मुझसे कभी जा ही नहीं सकती। तो मुझे कभी भी अर्चना, आई लव इट, आई जस्ट लव इट। I mean, people, I have seen people that don't like to talk about the talk or TV हाँ, shows and this and that. I love my show. I love Pavitra Rishta from the bottom of my heart. अगर वापस बन जाए मैं वापस कर लूंगी, मैं ऐसी लड़की हूँ। तो it's okay. I can be, जहाँ प्यार है मैं वही हूँ बस। I feel that मुझे पवित्र रिश्ता से इतना प्यार है कि मैं कर सकती हूँ वापस। अच्छा, कि बहुत लंबे टाइम तक किया था ना आपने पवित्र रिश्ता, काफी लंबा टेन्योर था 6 उसका। years, 6 years, yes, 2.0 भी आया था शाहिद शेख के साथ में। yes. ऑब्वियसली वो एक, मतलब मुझे लगता है एक पूरी लाइफ जी ली आपने अर्चना के तौर Yeah, पर। I mean, और उसमें मैंने सारी जनरेशन प्ले की थी, you know, हाँ, from young to old, double role, ये वो। So yeah, it has been a good experience, and I am very, very proud to be Archana Deshmukh. And लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर it's okay, I love it. अच्छा अर्चना, मतलब अंकिता, आपने टीवी में इतना अच्छा परफॉर्म किया, लीड के तौर पे काम किया, मतलब 6 साल प्लस फिर ये 2.0 आना, कम से कम 7-8 साल के लिए आपने काम किया टेलीविजन। एक बहुत लंबा वक्त होता है। टेलीविजन इज 2.0 लाइक, अभी आया है, 11 साल बाद 2.0 आया है। ओ माय गॉड, यस, बताओ। तो Yeah. उस बाद फिल्मों में आना, ठीक है, वेब भी उसके करना, पहले मैंने पवित्र किया, फिर मैंने मणिकर्णिका की, फिर मैंने yes, बागी की, फिर मैंने पवित्र रिश्ता अभी किया पिछले साल। हाँ। एंड या सो या इट हैज बीन अ जर्नी, बहुत बड़ी वाली। तो खुद की जर्नी को कैसे देखती है अंकिता? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, मैं तो आपको सिनेस्टार्स की खोज से बहुत पसंद करती हूँ, तो अंकिता उस वक्त से जब मैं आपको देखती हूँ ना, मुझे लगता था तभी कि आप में बहुत ज्यादा कैलिबर है ना, आप बहुत आगे जाओगे, इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंसी लड़की और इतनी टैलेंटेड भी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि फिल्मों में आके ना वो कैलिबर को यूज नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया, अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। आपको भी लगता है ऐसा? जी, अब वही तो है ना, मेरे लिए यहाँ कोई बैठा हो तो नहीं है जो मेरे लिए फिल्म बनाएगा। तो अब मैंने सोच लिया, मैं अपना काम खुद करूंगी, मुझे जो करना होगा मैं अपनी तरीके से प्रोड्यूस करूंगी फिल्म, और मैं खुद कमाऊंगी अपना। मुझे अब, बिकॉज ऑफ कोर्स, एंड यू नो, आई कांट फोर्स पीपल टू टेक मी बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड समवेयर आई फील पीपल डोंट वांट टू टेक मी। इट्स सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी, समवेयर आई फील इट। एंड यू नो, it's I know I have a talent, so it's always better to अपना खुद बनाओ और अपना खुद करो, अपना कैंप खुद खड़ा करो। हर किसी ने अपना खुद एक ना एक दिन तो खुद का कुछ किया होगा ना, तभी आज वो वहां पहुंचे। सो आई वुड रादर सिक्योर माय चिल्ड्रंस फ्यूचर, यू नो, क्योंकि मैं, आई डोंट नो, अगर मेरे बच्चे कभी बनना चाहे तो मैं नहीं चाहती कि उनको जैसे मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, या अभी तक मुझे वो चांस नहीं मिला। आई डोंट वांट माय किड्स टू गो थ्रू दैट। If I'm capable of doing that for my kids, I will do that. I will do it for myself before anything. So I would rather, you know, मैंने अब सोच लिया है कि इसीलिए मैंने शायद इंडिपेंडेंट सिनेमा किया, जहाँ पे एटलीस्ट, यू नो, आई एम डूइंग माई, आई एम, यू नो, मैं जो भी कर रही हूँ वहाँ रिस्पेक्ट है, वहाँ यू नो, मेरे कैलिबर को शायद मेरे को वो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ प्रोडक्शन हाउस का नाम बड़ा हो, बट मैं काम वही कर रही हूँ जो मैं उस प्रोडक्शन हाउस में करूंगी शायद। सो आई डोंट माइंड, मैंने अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख लिया ना, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। इट्स ओके, जो उन्होंने मुझे नहीं लिया वो उनका लॉस, आई डोंट केयर। आई लव यू फॉर दैट। तो मैं समझ लूं कि बहुत जल्दी अंकिता अपना प्रोडक्शन हाउस कराने वाली है और फिल्मों को प्रोड्यूस भी मेरे करेगी। प्रोडक्शन हाउस की मुझे नहीं पता प्रोडक्शन हाउस खुलेगा नहीं, लेकिन यस, जैसे मैंने कहा, शोएब के साथ काम करना, ही इज अ इंडिपेंडेंट सिनेमा डायरेक्टर। आज वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, देखा जाए तो। यस, फिल्म्स हैज गॉन टू कांस एंड सो मेनी, यू नो, कितने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में उसकी फिल्म जाती है, बट ही नेवर गॉट दैट रिकॉग्नाइजेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा। बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी प्रोडक्शन, वो फिल्म, फिल्म में कुछ होता नहीं है, जबकि you know, there is no acting, zero, सिर्फ कपड़े अच्छे पहना देते हैं और सब, and you know, everybody wants to do that film। मैं भी वो करना चाहती हूँ, बट फिर अब मैं अपने तरीके से उस चीज को करूंगी, बिकॉज मेरे लिए तो कोई नहीं खड़ा फिल्म करने के लिए। अब मैं बनाना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो व्हाई नॉट जस्ट अपना खुद का कैंप खोलो, खुद करो। अच्छी बात है। जब फिल्मों में आई थी आप टीवी के बाद में, तो फिर मतलब कोई ऐसी विश लिस्ट थी कि इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, जो अभी नहीं होगी ऑफ कोर्स, अभी तो खुद ही करना है सब कुछ? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम करने की बहुत इच्छा है, जो है संजय लीला बंसाली। एंड संजय सर और मेरा मतलब, यू नो, एक बहुत, आई रियली वांट कि एक दिन आए जब मैं उनके साथ काम करूं। उनके साथ कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे बस उनके साथ तो करना है। लाइक आई लव हिम, लाइक आई रियली डू। वैसे
एक्सपेक्टेशंस तब भी थे जब पद्मावत आ रही थी, कहा जा रहा था अंकिता उसमें काम कर रही है। अब वो बातें भूल जाते हैं, ठीक है, बट फ्यूचर देखते हैं। तो इफ यू आस्क मी any one director, I would always say Sanjay Leela Bhansali. I feel that he That can, grandeur. no, not grandeur. He understand the beauty. He understand कि इस actor में से मैं क्या निकलवा सकता हूँ. And that's what I believe. He knows that इसके अंदर क्या है और ये क्या कर सकती है. So I know that, there will be a day where I will definitely work with him. So Ankita feels she is a director's actor, right? Yes, I am. Oh, At least wow. for Sanjay sir. Ah, At least for Sanjay sir. Yes, I am. I would just, मैं उनकी मतलब थाप पे नाचना चाहती हूँ. Literally, I would say that. Because he's fantastic. I love him, and I love him as a human being also. So that's my thing. Yeah. दिल से बोल रही हूँ वैसे मैं, आज आपने बहुत इंस्पायर किया मुझे अपनी बातों से। Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Namita. विमेंस डे भी आ रहा है, हमारे देश की महिलाएं विमेंस आईपीएल भी खेलने जा रही हैं 4 मार्च से, तो कुछ कह दो यार उनके लिए भी, मतलब उनको भी थोड़ा और। यार, लड़कियों को किसी चीज की जरूरत नहीं होती. उन्हें सिर्फ अपने आप से बिलीव करने की जरूरत है कि वो ये कर सकती हैं, और वो ये कर रही हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू आईपीएल टीम विमेन इंडिया. जीत कर आना, मस्त चक दे फटे, बस यही बोल सकते हैं. इंडिया चक दे फटे, बिल्कुल सही बोला। एंड थैंक यू सो मच अंकिता, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और ऑब्वियसली आप प्रोड्यूसर बन, डायरेक्टर भी होंगी अपनी खुद की फिल्मों की, और इंशाल्लाह आपको वही रोल करने का मौका मिले. Thank you so much, Namita. Lovely talking to you.